Part 9. آئیے ریل گاڑی میں بیٹھیں اور کوئٹے سے کلکتے تک چلیں۔ کیا آپ نے کبھی لاہور کا ریلوے اسٹیشن دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہے تو کبھی سوچا ہے کہ اسٹیشن کی عمارت بالکل قلعے جیسی ہے؟ اور کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ لاہور ریلوے اسٹیشن کی عمارت قلعے جیسی کیوں ہے؟ یہ عمارت قلعے کی شکل پر اس لیے نہیں بنائی گئی کہ لاہور کے قلعے کی یہ جڑواں عمارت کہلائے، بلکہ جن دنوں یہ عمارت بنی وہی دن تھے جب ہندوستان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک اہل ہند کے سروں میں آزادی کا سودا سمایا ہوا تھا، اور وہ بدیسی حکمرانوں کو دیس نکالا دینے کے لیے سر سے کفن باندھ کر نکل کھڑے ہوئے تھے۔ لاہور اسٹیشن اور ریل گاڑی کی کہانی کا ایک کردار ایسا ہے جس کے ذکر کے بغیر یہ داستان مکمل نہیں ہو سکتی، اور وہ ہے محمد سلطان۔ یہ وہ شخص ہے جو صابن بناتے بناتے لاہور کی چھاونی اور ریلوے اسٹیشن کی عمارت بنانے لگا۔ وہ ایسی خوبیوں کا مالک تھا کہ انگریزوں کو شیشے میں اتار کر ملتان سے امرتسر تک ڈالی جانے والی ریلوے لائن کے ٹھیکے لینے لگا۔ اب تو خود لاہور والے بھی نہیں جانتے کہ شہر کی سرائے سلطان کون سے سلطان کے نام پر ہے۔ میرے ساتھی عارف فقار نے لاہور میں بہت عرصہ گزارا ہے اور محمد سلطان کے حالات جاننے کے لیے کئی کتابیں کھنگالی ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ محمد سلطان کون تھے۔ یہ سلطان کشمیری جو تھے، جن کا بعد میں نام سلطان محمد ٹھیکیدار بن گیا، یہ بڑی دلچسپ شخصیت تھے۔ یہ اصل میں سکھوں کے زمانے میں جب پنجاب پہ یعنی سکھوں کی حکومت تھی تو یہ صابن بنانے کا کاروبار کیا کرتے تھے لاہور میں، اور پہلوانی کا شوق تھا، اور پہلوانی کی وجہ سے ذرا جانے مانے آدمی تھے۔ لیکن جب انگریز آئے تو انہوں نے اپنا وہ رسوخ جو پہلوانی کی نسبت انہیں ملا ہوا تھا اسے استعمال کرتے ہوئے انہوں نے انگریزوں سے ٹھیکے لینے شروع کر دیے، اور انگریزوں نے بھی دیکھا کہ بارسوخ آدمی ہے اور یہ ہر چیز جو ہے فوراً پیش کر دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے 1850 میں جب لاہور چھاونی بن رہی تھی تو انہیں چھاونی میں بارکوں کا ٹھیکہ ملا، اس کے لیے اینٹیں وینٹیں لانے کا۔ تو انہوں نے وہ ہڑپا کے کھنڈرات میں سے اینٹیں منگانی شروع کر دیں، کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں تھا چونکہ انگریزوں کی سرپرستی حاصل تھی، اور انگریز بڑے خوش تھے ان سے۔ اور اس کے بعد جب ریلوے لائن کی تعمیر شروع ہوئی تو اسی رسوخ کی وجہ سے جو چھاونی کی تعمیر کے دوران ان کی انگریزوں سے دوستی کی وجہ سے ان کو حاصل ہو گیا تھا، اسی کی بنا پہ انہیں لاہور کا اسٹیشن بنانے کا ٹھیکہ مل گیا، امرتسر کا اسٹیشن بنانے کا ٹھیکہ مل گیا، اور لاہور سے ملتان تک کی جو لائن بچھ رہی تھی اس کے لیے زمین ہموار کرنے، وہاں پہ بجری بچھانے، لکڑی کے تختے لانے، یعنی وہ کوئی 200 میل کا علاقہ جو تھا پوری لائن کا، وہ ان کے حوالے کر دیا گیا کہ یہ سب کچھ آپ سامان سپلائی کیجیے۔ تو اب انہوں نے سپلائی کرنا شروع کیا۔ اب وہ ان کو اینٹیں چاہیے، بجری چاہیے، تو کہاں سے لائیں؟ انہوں نے عمارتیں توڑوانی شروع کر دیں، اور عمارتیں بھی ایسی ایسی شاندار عمارتیں کہ جن کی بڑی تاریخی اہمیت تھی۔ مثلا داراشکو کے جتنے محلات تھے وہاں، وہ سب انہوں نے راتوں رات گروا کے اس کی بنیاد میں سے پکی اینٹ نکال کے اس کی بجری کوٹ کے اور وہاں ریلوے لائن پہ بچھا دی۔ اسی طرح ستارہ بیگم کی مسجد جو کہ ساتھ مدرسہ بھی تھا جس میں حجرے بھی تھے، وہ بھی راتوں رات انہوں نے توڑوائی اور اس کی اینٹیں کوٹ کے وہاں بجری جو تھی وہ ریلوے لائن پہ بچھا دی، اور انگریزوں کی آشیرواد حاصل تھی اور پھر شاباش بھی حاصل ہو گئی اور رپورٹوں میں ان کا نام بھی آ گیا۔ تو یہ سلسلہ 1850 سے شروع ہوا، اور 1862 تک یہ جو شخص تھا یہ انگریزوں کا منظور نظر رہا، ان کی ریلوے لائن کے لیے ہر طرح کا مال سپلائی کرتا رہا، لیکن اتنے بڑے بڑے ٹھیکے اس نے سنبھال لیے تھے کہ وہ اس سے چلانا مشکل ہو گئے، اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سپلائی کیسے کرے۔ تو انجینئرز نے شور مچانا شروع کر دیا، رپورٹیں ان کے خلاف لکھنی شروع کر دیں کہ یہ جناب سلطان محمد تو سامان نہیں پہنچا رہا۔ لہٰذا کہاں تو 1862 میں عروج کا یہ عالم تھا کہ لاہور میونسپل کمیٹی جب تشکیل ہوئی پہلی بار 1862 میں تو ان کو اعزازی طور پہ نامزد کر دیا گیا اس کمیٹی کے لیے، اور کہاں ایک ہی برس بعد 1863 میں یہ حال ہوا کہ تمام ٹھیکے ان سے ایک 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 کر کے واپس لیے جانے لگے، اور 1870 تک یہ بالکل کنگال ہو گئے، اور اس کے 5 سال بعد یہ بڑی قسم پرسی کے عالم میں مرے۔ تو یہ ہوئی محمد سلطان کی بات۔ ویسے یہ حقیقت ہے کہ ملتان سے لاہور تک ریلوے لائن بچھانے کے لیے جو پتھر درکار تھے وہ ہڑپا کے تاریخی ٹیلوں سے لائے گئے تھے۔ 1857 کے یہ وہی دن تھے جب بر صغیر کے طول و عرض میں ریلوے لائنیں ڈالی جا رہی تھیں، اور تیزی سے ڈالی جا رہی تھیں۔ ہندوستان کے افق پر بغاوت کے اٹھتے ہوئے بادل پہلے ہی نظر آنے لگے تھے، اور حکمرانوں کی کوشش یہ تھی کہ ریل گاڑی چل جائے تاکہ فوجوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تیزی سے پہنچانے کا بندوبست ہو جائے۔
वो जो आज़ादी की धुन में मगन थे, सिंध से लेकर बिहार और मगरबी बंगाल तक अपनी बोसीदा फरसूदा भरमार राइफलें और तपंचे उठाए फिर रहे थे और विदेशी हुक्मरानों पर फैर कर रहे थे। लिहाजा रेलवे लाइनें डालना मुश्किल हुआ जा रहा था। उन हालात में लाहौर का रेलवे स्टेशन बना। इमारत को बागियों के हमलों से महफूज रखने के लिए किले की तरह बनाया गया। उसमें फसीलें भी थीं, बुर्ज भी थे, राइफलें और तोपें दागने के लिए फसीलों में रीखें भी थीं। गरज ये कि हमलावर को परे रखने के सारे इंतजामात थे। उस वक्त स्टेशन के दोनों सिरों पर लोहे के बहुत बड़े बड़े दर भी लगाए गए थे, ताकि अगर हमला हो तो स्टेशन को हर तरफ से बंद कर दिया जाए। रातों को भी लाहौर स्टेशन के दोनों आहिनी गेट बंद कर दिए जाते थे। हाँ, तो रेलगाड़ी का ये सफ़र मुझे कोयटा से यहाँ लाहौर तक ले आया है। जिस रोज़ मैं वहाँ पहुँचा, क्रिकेट के आलमी कप का फाइनल मैच होने वाला था और अहले लाहौर सरशारी के आलम में सड़कों पर गा रहे थे और बागों में धमाल डाल रहे थे। मैं अपना टेप रिकॉर्डर उठाए लाहौर के रेलवे स्टेशन जा पहुंचा। 2 रोज़ बाद मुझे समझौता एक्सप्रेस में बैठकर सरहद पार करके हिंदुस्तान जाना था। सोचा कि चलकर कुछ मालूमात हासिल कर लूं। स्टेशन में दाखिल होते ही रेलवे के अमले के कुछ हजरात मिले। मैंने अपना तारुफ कराया। मैं BBC लंदन से आया हूं, मेरा नाम रज़ा अली आबदी है। एक साहब ने मुझे भींच कर सीने से लगाते हुए कहा, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ कियानी है, यूं प्यार से लोग मुझे भोला कहते हैं। बस फिर सारे काम आसान हो गए। समझौता एक्सप्रेस किस दिन, कितने बजे, कौन से प्लेटफॉर्म से चलती है, पासपोर्ट कहाँ देखे जाते हैं, टिकट कहाँ मिलता है, मुझे न सिर्फ बताया गया बल्कि ले जाकर वो तमाम जगहें दिखा दी गईं। लाहौर रीजन का रेलवे का अमला इतना खुश अखलाक है कि हर शख्स भोला नजर आने लगा। ये सोचकर मैं खुशी से झूम उठा। अपनी गहरी नीली वर्दी में वो लोग बड़े दीदा ज़ेब नजर आ रहे थे, जैसे खुशहाल और खाते पीते लोग होते हैं। मगर जब मैं रेलवे स्टेशन से बाहर निकला तो महसूस हुआ कि तंग दस्त, बदहाल और ज़माने के हाथों सताए हुए लोगों के मजमे के दरमियान आ गया हूँ। ये लाहौर रेलवे स्टेशन के कुली थे। कोई ट्रेन नहीं थी तो उनके पास कोई काम भी नहीं था, सब बेकार खड़े थे। मैंने बात करना चाही तो झट तैयार हो गए और मैं जो कुछ पूछता रहा दयानतदारी से बताते रहे। स्टेशन पर जगह जगह लिखा था, कुली का निर्ख 7 रुपये फी फेरा। इस ज़माने में 7 रुपये भला क्या होते हैं, खुसूसन पाकिस्तान में, जहाँ इसी लाहौर के रेलवे स्टेशन पर मैंने अपनी आंखों से एक गरीब बुर्कापोश ज़ईफ़ा को देखा जो 100 रुपये बतौर रिश्वत पेश कर रही थी और इमिग्रेशन का अफसर वो नोट हकारत से ठुकरा रहा था। उसकी कहानी जल्द ही मैं आपको सुनाऊंगा। उस वक्त मैं कुलियों के मजमे में घिरा खड़ा था और उनसे कह रहा था कि 7 रुपये फी फेरा का निर्ख तो बहुत ही कम है। कम है, बहुत महंगाई के दौर पे बहुत कम है। लेकिन लोग कुछ ऊपर से देते हैं कि नहीं? कोई देने वाला जो होते हैं वो तो दे ही जाते थे, नहीं देने वाले 5-7 भी नहीं देते, 5 दे देते। लोग झगड़ा करते हैं। हाँ बिल्कुल बोलते तुम्हारे 7 रुपए फी फेरे। लेकिन लोग माल तो बड़ा लाते हैं, वजन बहुत उठवाते हैं आपसे। हाँ बिल्कुल। तो आप कहते होंगे 2 कुली करें सर, वो 100 भी कोई दे जाता है, कोई 50 दे जाता है, कोई 10, कोई 5। खुशी से जो दे जाए कानूनी तौर पर हम नहीं ले सकते। अब मैंने कुलियों से पूछा कि आप लोग रोज़ जो कुछ कमाते हैं अगले रोज़ तक खा पी कर बराबर कर देते हैं। अगर खुदा न खास्ता आप किसी वजह से काम न कर सकें, मसलन बीमार पड़ जाएं, तो क्या होता है? फिर बस उधर ही दवाई में पैसा में से होए तो ले लेते हैं, नहीं तो नहीं। कोई तनख्वाह सर, वो कोई जो पेंशन, कोई भी नहीं है। कोई रेलवे का अस्पताल, कोई रेलवे वाले तो कुली को निकाल देते हैं बाहर, ये कुली है। आप को रेलवे वाले अपना मुलाजिम नहीं समझते? नहीं सर। आपके बच्चे रेलवे के स्कूल नहीं जा सकते? नहीं, कोई भी नहीं। कोई आप स्टेशन से बाहर के लोग हैं? बिल्कुल बाहर से। तो आप लोगों का कोई यूनियन है? कोई यूनियन नहीं है। यूनियन बिल्कुल कोई नहीं। मतलब आप लोगों के हुकूक के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ता? कोई नहीं। अच्छा, बात हुई नहीं तो पुलिस वाले अंदर कर देते हैं थाने में, चलो भाई। ये बताएं पुलिस वाले कितना परेशान करते हैं? बहुत, कुलियों को तो बहुत परेशान करते हैं। हालांकि कुली तो गरीब होते हैं। बिल्कुल गरीब का एहसास नहीं करते ना। मैंने कुलियों से पूछा कि आप लोगों में कोई पढ़ा लिखा है? सिर्फ एक अधेड़ उम्र कुली बोले, मैं 6 जमातें पढ़ा हूँ। मैंने पूछा,
پھر آپ कुली क्यों हो गए, कोई और नौकरी क्यों नहीं ढूंढी? ढूंढी है लेकिन मिली नहीं है सर। हाँ जी, गुर्बत भी वजह से इस काम में आ गई जी। 10-12 बंदे घर के खाने वाले हैं, तो और कोई काम सरकारी तो मिलता नहीं है, ना इतने वसाइल हैं, तो बस मजबूरी से यही काम कर रहे हैं। मगर इस एक स्टेशन पे अगर 500-600 कुली हैं तो आपकी आमदनी ज्यादा तो नहीं होगी? मकसद है कि किसी दिन मिल जाता है, किसी दिन नहीं मिलता है, किसी दिन थोड़ा मिलता है, किसी दिन थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है जी। कुछ भी हो, फिर ख्याल आता है कि स्टेशन का होना गनीमत है। ये ना होता तो इतने बहुत से गरीब और इनके बाल बच्चे कहाँ समाते। और आइए अब रेलवे स्टेशन के एक टैक्सी ड्राइवर से बातें करें। कुलियों से गुफ्तगू करके मैं टैक्सियों की तरफ बढ़ा। पीली छत वाली बहुत सी टैक्सियां खड़ी थीं। मुझे तो इंग्लिस्तान की आदत है, मुसाफिर सबसे पहले आगे खड़ी हुई टैक्सी के पास जाता है। 4 कदम जाना हो या 40 मील, टैक्सी ड्राइवर सादतमंदी से बिठाकर मंजिल पर पहुंचा देता है। मगर उस रोज लाहौर के स्टेशन पर मैंने देखा कि मुझे अपनी जानिब आता देखकर टैक्सी ड्राइवर अनजान बन गए और दूसरी तरफ देखने लगे। एक भले मानस ने मेरी आंखों में देखा और मुझे अपनी टैक्सी में बिठा लिया। उनका नाम मोहम्मद तुफैल था। मैंने पूछा कि तुफैल साहब, ये टैक्सी ड्राइवर मुझे अपनी गाड़ी में बिठाने से गुरेज क्यों कर रहे थे? तुफैल साहब ने सारी बात समझा दी। कहने लगे कि ये रेलवे स्टेशन का टैक्सी स्टैंड है, ये लोग ट्रेन से उतरने वाले मुसाफिरों को बिठाते हैं, क्योंकि उन्हें दूर जाना होता है, थके हुए होते हैं, मंजिल पर पहुंचने की जल्दी होती है, इसलिए मुंह मांगा किराया दे देते हैं। आप ट्रेन के मुसाफिर नहीं, आप कोट पतलून पहने हुए हैं, इसलिए ड्राइवरों को अंदाज़ा हो गया कि आप यहीं कहीं शहर में जाएंगे और ये कि आप 40-50 रुपए से ज़्यादा के मुसाफिर नहीं। मोहम्मद तुफैल की इस वजाहत ने मेरे जहन के बेशुमार तबक रोशन कर दिए। मुझे लोअर मॉल जाना था और मैं वाकई 40 रुपए से ज़्यादा का मुसाफिर नहीं था। मैंने मोहम्मद तुफैल का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं। इस पर उन्होंने अपना एक वाक़या सुनाया। टैक्सी लाहौर की सड़कों पर दौड़ती जा रही थी और वो अपना वाक़या सुनाते जा रहे थे। एक बार इधर गुलबर्ग में सकीम मोड़ से एक सवारी उठाई मैंने। अच्छा। उनकी शादी थी, उनका बैग रह गया डिग्गी में। मैं घर चला गया, अली रजाबाद इलाका, नवाज साहब रेवेंड रोड। तो 11:30 का टाइम हो गया, तो मैं सोने लगा। एक आदमी आ गया, वो कहता मुझे स्टेशन पे छोड़ के हमने इस्लामाबाद जाना है। मैंने कहा चलो भाई, मैं छोड़ आता हूँ। तब इधर गाड़ी आ गई, वो अपना शालीमार, तो हमने लालच किया भी चलो कोई सवारी उठा ले। जब सवारी उठाने लगा तो बैग डिग्गी में। मुझे मालूम था कि उनकी कोठी कहाँ। अच्छा। हाँ, मैं फिर रात को 2 बजे गया उनके घर। हो अल्लाह जाने उनके घर में तो ऐसे था जैसे क़यामत आ गई। अल्लाह जाने उस बैग में क्या था क्या नहीं था, मुझे नहीं मालूम। हाँ, मैंने उनको कोई चीज़ उसकी छेड़ी, यानी कि ऐसे भी हाथ भी नहीं लगाया और ना लगाने दिया सवारी को। मैंने कहा भाई अपना सामान ऊपर रखो, ये ना हो कि मैं फिर बोल जाऊँ तो आप ले जाएं। हाँ, बस वो जब मैं उनके घर गया उन्होंने मुझे 200 रुपया दिया। तो कहने लगे भाई आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, आप जैसे अच्छे लोग अभी भी हैं। मैंने मोहम्मद तुफैल से पूछा कि पुलिस वाले तो आपको बहुत परेशान करते होंगे। कहने लगे कि मैंने एक एक कागज़ दुरुस्त करके रखा है, हर टैक्स और हर फीस की पाई अदा कर रखी है। यही वजह है कि मैंने आज तक किसी पुलिस वाले को रिश्वत नहीं दी। बताने लगे कि टैक्सी ड्राइवरों को पुलिस से ज़्यादा जराइम पेशा ग्रोहों का खौफ है। हमारे सकीम मोड़ के काफ़ी ड्राइवर मारे गए हैं और 1-2 ग्रोह पकड़े भी गए। तो पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया। लूट लेते हैं ड्राइवरों, लूटते भी हैं, जान से मार देते हैं, ज़िबा कर देते हैं। आपकी कोई ड्राइवरों की कोई यूनियन वगैरह है? सब कुछ है लेकिन करते कुछ नहीं, सब खाने वाले जुड़े। यही बात मुझसे मुल्तान के स्टेशन पर एक गरीब क्लीनर ने भी कही थी। मैं और ड्राइवर मोहम्मद तुफैल बातें करते चले जा रहे थे। लाहौर की सड़कों पर क्रिकेट के आलमी कप के ताल्लुक से सैकड़ों तरह के इश्तहारी बोर्ड लगे हुए थे। सड़कों पर छोटे छोटे लड़के अखबार बेच रहे थे और चौराहों पर रुकने वाली मोटर गाड़ियों की खिड़कियों में मुंह डाल डाल कर अखबार की सुर्खियां सुना रहे थे। ड्राइवर मोहम्मद तुफैल को पता न था कि मैं मंजिल पर पहुंचकर उन्हें 40 के बजाय 100 रुपये देने का इरादा कर चुका हूं।
अभी अभी वो कत्ल हो जाने के अंदेशों की बात कर रहे थे, मगर अब वो अखबार बेचने वाले लड़कों की शरारतों पर हंस रहे थे और अखबार की फर्जी सुर्खियां सुन सुनकर कह लगा रहे थे। बहुत अच्छे आदमी थे मोहम्मद तुफैल। हाँ मैं आज मैच श्रीलंका जीत रहा है। आज पाकिस्तान ने कब ले जाना है। पार्ट 10। आइए रेलगाड़ी में बैठें और कोयटे से कलकत्ते तक चलें। कोयटे से चलकर और लाहौर पहुंचकर अब जब मैं हिंदुस्तान में दाखिल होने वाला हूं, ये बात पूरे वसूख से कह सकता हूं कि पाकिस्तान को रेलगाड़ियों का लाजवाब और बेमिसाल नेटवर्क मिला है, जिसमें बेशुमार सलाहियतें और अनगिनत इम्कानात हैं। कोई चाहे तो इस बने बनाए निज़ाम को तरक्की के आसमान पे पहुंचा दे, मगर फिर सोचता हूं कि पहुंचाए कौन। कोई करने वाला हो तो रेलवे के निज़ाम में इतना काम करे कि ज़मीनों को ज़मीनों से और दिलों को दिलों से जोड़ने वाली ये रेलगाड़ी न सिर्फ मईशत बल्कि माशरत में भी इनकलाब बर्पा कर दे, मगर फिर सोचता हूँ कि करे कौन। लीजिए, आज मैं आपको पाकिस्तान रेलवे के सिग्नल और कांटे के एक केबिन में लिए चलता हूँ। जो केबिन क्या है, पाकिस्तान रेलवेज़ की नब्ज़ है। इसे टटोलिए, मरज़ आप खुद ही जान लेंगे। ये केबिन कहाँ है? इसमें जो गरीब मेहनतकश खून पसीना एक करके कांटे उठा रहे हैं, कांटे गिरा रहे हैं, पटरियां बदल रहे हैं, सिग्नल को चला रहे हैं, ये कौन हैं, इनके नाम क्या हैं, ये मैं बताने से कासिर हूँ। मैं नहीं चाहता कि इन पर कोई अजाब नाजिल हो। इसके अलावा मैंने केबिन में जितनी भी आवाज़ें और गुफ्तगू रिकॉर्ड की है, वो सबसे छुप कर की है। ये लोग जो यहाँ इतना ज़ोर सर्फ कर रहे हैं कि हम और आप करें तो हमारे बदन की हड्डियाँ चिटक जाएं, इन्हें नहीं पता कि मेरा टेप रिकॉर्डर चल रहा है और रिकॉर्डिंग हो रही है। मैं केबिन में दाखिल हुआ तो सादा लौह अमले ने बड़ी गर्मजोशी से मेरा खैर मकदम किया। मैंने कहा कि आप लोग बड़ी मेहनत और बड़ी जिम्मेदारी का काम करते हैं, क्योंकि जब कभी रेलगाड़ी का कोई हादसा होता है यही सुनने में आता है कि कांटे वाले की गलती से हुआ। क्या वाकई ऐसा होता है? ये नहीं हो सकता। ओवरशूट ड्राइवर जाता है, जिम्मे केबिन मैन के लग जाती है, क्योंकि उसका कांटा तो नॉर्मल पोजीशन में, ये रूट बैक है, नॉर्मल पोजीशन में रहा, जैसे वो है वो चढ़ गया गाड़ी पे। वो केबिन मैन का जुर्म नहीं होता और ना वो सोया हुआ होता है। अच्छा जी, ये तो मुझे 8 साल यहीं हो गया किबला, तो यहाँ तो ऐसा हादसा भी नहीं हुआ और ना हमें सोने का वक्त मिलता है। आप देख सकते हैं अभी गाड़ी है और ये शंटिंग ट्रेन जा रही है, यहाँ तो ऐसा काम चलता है। और ज़रा सोचिए कि दुनिया 21वीं सदी में दाखिल हुआ ही चाहती है और पाकिस्तान रेलवेज़ के इस सिग्नल केबिन वालों को खिड़की से मुंह निकाल कर और चिल्लाकर इंजन ड्राइवर को हिदायत देनी पड़ी। सुनिए। तो अभी जो आपने इस इंजन ड्राइवर से कहा कि दरमियान में रोक लेना, इसका क्या मतलब था? इसका ये मतलब था कि पॉइंट हमारा जाम हो जाता है, ट्रेन पे प्लेस नहीं हो सकती थी। इसके लिए इसे दरमियान में रोका, ये प्लेस हो जाएगी, फिर इसको जब चलाने का वक्त आएगा पॉइंट लगा कर लाख बार फर कर इसे चला देंगे। केबिन की पुश्त पर दीवार थी जिसमें कदीम ज़माने का एक आतिशदान बना हुआ था, जिसमें शायद 50 साल से आग नहीं सुलगी थी। कभी बिजली का हीटर लगाया गया होगा, वो जलकर बेकार हो गया। एक ट्यूबलाइट लगाई गई थी, वो फ्यूज हो गई। अब शायद 60 वॉट का एक नंगा बल्ब लगा था और बस। केबिन में सामने की जानिब 3 तरफ खिड़कियां थीं, जिनके ज़्यादातर शीशे टूट चुके थे, और सर्दियों की रातों में यख हवा चलती थी तो बेचारा केबिन मैन पुराने अखबार और गत्ता ठूंस ठूंस कर हवा रोकता था। सामने एक किनारे से दूसरे किनारे तक ठोस लोहे के कांटे के बड़े बड़े हैंडल लगे हुए थे, जिन्हें खींचना, गिराना, रिलीज करना आम आदमी के बस का काम नहीं। फिर किस तरह के लोग ये मशक्कत झेलते हैं? ये तकरीबन जनाब ये देहात के आदमी है ना, ये काम करते हैं, अक्सर देहाती आदमी है।
लेकिन वहाँ एक होनहार सा केबिन मैन खड़ा था और पढ़ा लिखा नजर आ रहा था। पता चला कि वो मैट्रिक पास है। मैंने कहा कि तुम तो तालीम याफ्ता हो, बैंक या बीमे वगैरह में काम कर सकते थे। कहने लगा, इसकी सिफारिश और पैसे की ज़रूरत है रिश्वत की, वो जो है हमारे पास नहीं है। इसमें हमने जब भर्ती हुआ है सन 90 में, तो तकरीबन 7,000 रुपया हमने दिया रिश्वत का, और सवार से उल्टे हमने लगवाई, फिर जाके ये हमारा काम बना। नौजवान की आवाज़ शोर में दब गई। वो कह रहा था कि ये कांटे उठाने गिराने की नौकरी भी आसानी से नहीं मिली। उसने 7,000 रुपये रिश्वत के दिए और सिफारिशें लगवाईं, फिर जाकर उसका काम बना। ये तो नया केबिन मैन था। पुराना केबिन मैन अपने काम में तनदही से जुटा हुआ था, जिसके लिए उसे 8 घंटे खड़े रहना पड़ता है। न बैठने की फुर्सत है, न मोहलत है और न सहूलत है। और तो और इस केबिन से मिला हुआ न कोई बाथरूम है, न कोई टॉयलेट। बड़ा जिम्मेदारी का काम है, जिम्मेदारी और ताकत का काम है, और ताकत का काम है। 8 घंटे यहीं असर करना पड़ता है आजकल के। और 100 साल की ये काय बना है जनाब। आज तक पाकिस्तान 1906 की बनी है और आज तक पाकिस्तान ने चेंज नहीं की, वही की वही सारा कुछ खड़ा है। जो टूट जाए बदल दिया, वरना वही खड़ा है। केबिन मैन ने मुझे एक दहला देने वाली बात बताई। कहने लगा कि ये सामने पैनल पर लगे हुए 12 बल्ब देख रहे हैं आप, ये ना हो तो गाड़ियां आपस में टकरा जाएं, और इनमें से 9 फ्यूज पड़े हैं। बल्कि हुकूमत के पास इतने पैसे नहीं है, ये बल्ब ले दीजिए, सब फ्यूज खड़े हैं जितने खड़े हैं। न तो आउटर से लेकर आउटर तक हमारे पास टीएं मौजूद हैं। फलांटी पे आउटर के बाहर गाड़ी खड़ी है, हमें मालूम हो जाता है गाड़ी खड़ी है, लेकिन बल्ब फ्यूज हैं, हुकूमत ले भी नहीं सकती। आपने मांगे कभी बताया? वो इतला दिया, सबको पता है, ब्लॉक वालों को पता है कि यहाँ से वो बल्ब नहीं है। तो आप सिर्फ आंखों से देखकर पता करते हैं कि? अब तो लाइट से मालूम करते हैं कि गाड़ी खड़ी है रात के वक्त, दिन को सामने नज़र आ जाती है। इधर पता नहीं कि आउटर के पास गाड़ी खड़ी है, आउटर के बाहर गाड़ी हो तो ये टी रेड होती है, ओनली टी। मगर इसमें बत्ती नहीं है? बत्ती नहीं है, जल्दी नहीं है। पिछले 2 सालों में जो पिरोगा में सुपर एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हुआ है, इन्हीं बल्बों की वजह से हुआ है। बाद इनके वो छकड़े खड़े थे, मालूम नहीं हुआ ना एसएम को और ना ही कैबिन मैन को, बस उन्होंने लैंड क्लियर दे दिया, एक्सीडेंट हो गया सिर्फ इतने की वजह। ये बल्ब होगा कितने का? ज़्यादा से ज़्यादा 2 रुपये का। सिग्नल मैन के दुख इसी पर तमाम नहीं हुए। मेरा ख्याल था कि इतनी जिम्मेदारी का, इतना दुश्वार काम करने की उसे उजरत तो अच्छी खासी मिलती होगी। लेकिन अफसोस पाकिस्तान पे है, स्केल वही 5वां रखा है कैबिन मैन का, और पोजीशन वही रखी है। और हाँ, काम यही है, देख सकते हैं, और पढ़ाई लिखाई भी काम यही है, तुम्हारे सामने है। अगर आप 25 साल मुलाजमत करें तो इसी ग्रेड में रहेंगे? 5वें से छठा हो जाएगा, बस उसके बाद कोई विचार नहीं। मैंने सिग्नल मैन से पूछा, आपके बच्चे तालीम पा रहे हैं? जी। वो तो इधर लाइनमैन का कभी दिखाया भी नहीं है कैबिन कभी नहीं दिखाया, और मेरे बच्चों को ये याद ही नहीं है कि कैबिन कैसी और कहाँ होती है, और न ले आए हैं। ये तो हुई पाकिस्तान रेलवेज के एक सिग्नल केबिन की कहानी, और ये है लाहौर के एक रेलवे मुलाजिम का वाक़या। 17 मार्च की बात है। मैं रेल का सफ़र करता हुआ 2 रोज़ पहले वहाँ पहुँचा था। शहर के अखबार जंग में एक खबर छपी, वो मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। रेलवे हेडक्वार्टर में महकमे के एक साबिक ऑफिस सुपरिटेंडेंट मकसूदुल हसन ने रेलवे अफसरों के रवैये और रिश्वतखोर अमले के ख़िलाफ़ एहतजाजन दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी, जिसे तशवीशनाक हालत में अस्पताल में दाखिल करा दिया गया, जहां वो दम तोड़ गया। बताया गया है कि मकसूद काफ़ी अरसे से पेंशन के लिए रोज़ाना रेलवे हेडक्वार्टर के चक्कर काटता था, मगर अमला मुबैना तौर पर उससे 10% कमीशन मांगता था,
جبکہ مقصود کا کہنا تھا کہ یہ اس کی حق حلال کی کمائی ہے، وہ کسی کو کمیشن کیوں دے۔ اس سلسلے میں وہ ریلوے افسران سے بھی ملنے کی کوشش کرتا رہا، مگر کسی نے اس کی بات نہیں سنی۔ عینی شاہدوں کے مطابق گزشتہ روز اس نے ریلوے ہیڈ کوارٹر کی دوسری منزل پر کھڑے ہو کر بآواز بلند کہا کہ رشوت لینے والے عملے کے خلاف کوئی افسر اس کی بات نہیں سنتا، اس لیے یہاں سے چھلانگ لگا رہا ہوں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ دھڑام سے سڑک پر آ گرا اور خون میں لت پت ہو گیا، جسے فوری طور پر اسپتال پہنچا دیا گیا، مگر وہ کچھ دیر بعد دم توڑ گیا۔ اس سلسلے میں رات گئے تک ریلوے کے متعلقہ افسران سے موقف کے لیے رابطہ نہیں ہو سکا، جبکہ ریلوے اور قلعہ گوجر سنگھ پولیس اس واقعے سے لا علمی کا اظہار کرتی رہی۔ صبح صبح یہ خبر نظر سے گزری تو سب سے پہلے دل نے یہ دعا مانگی کہ خدا کرے یہ خبر غلط ہو۔ وہ دعا تو قبول ہو گئی۔ بعد میں پتہ چلا کہ رشوت خور ملازم انہیں واقعی ستا رہے تھے۔ اس روز وہ جان دینے کی ٹھان کر بھی گئے تھے، اور صرف یہی نہیں بلکہ بیوی بچوں کو بھی ہمراہ لے گئے تھے۔ وہی ہوا جو روز ہو رہا تھا۔ ملازموں نے پھر رشوت مانگی، انہوں نے جان دینے کا اعلان کیا اور ریلوے ہیڈ کوارٹر کی دوسری منزل سے کود گئے۔ ان کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں اور اب باقی عمر 2 گھاؤ انہیں ستاتے رہیں گے، معذوری کا گھاؤ اور رشوت خوری کا گھاؤ۔ جس دل کی دعا قبول ہوئی اس دل کو کچھ یقین سا ہے کہ اتنے سنگین واقعے کے بعد کئی رشوت خور ملازم معطل ہوئے ہوں گے، کئی کی جواب طلبی ہوئی ہوگی، کئی کے خلاف تفتیش ہوئی ہوگی، اور کئی بے عزت طور پر برطرف کیے جا چکے ہوں گے۔ اسی روز کے اخبار میں ایک اور خبر چھپی، اور میں چونکہ ریل گاڑی کے سلسلے میں ہر قسم کے حالات و واقعات کا متلاشی تھا، یہ 3 سطروں کی خبر بھی میں نے بڑی دلچسپی سے پڑھی۔ لکھا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی لیبر ونگ کے ریلوے انتظامیہ کے ساتھ مذاکرات آج 11 بجے دوپہر ڈویژنل آفس لاہور میں ہوں گے۔ یہ بات محمد نواز مرزا، کوآرڈینیٹر برائے ریلوے پیپلز بیورو نے بتائی ہے۔ مذاکرات ہو رہے ہیں تو کچھ مسائل بھی ہوں گے، یہ سوچ کر میں مقررہ وقت سے پہلے ہی لاہور کے ریلوے کے ڈویژنل آفس جا پہنچا۔ ذرا سی دیر میں سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا۔ لاہور ریجن کے تقریباً 1 درجن TCR یعنی ٹکٹ چیکرز کو ترقی ملی تھی، اور کئی مہینے پہلے ان کے پروموشن کے آرڈر بھی ہو گئے تھے۔ مجھے احساس ہوا کہ کوئی با اختیار ملازم ترقی کی فائلوں پہ چڑھا بیٹھا ہے، اور غریب ٹکٹ چیکرز کی کئی مہینے گزر جانے کے باوجود نہ حیثیت بڑھ رہی ہے اور نہ اجرت۔ یوں لگا کہ پھر کہیں کوئی 10% کمیشن کی خاطر منہ پھاڑے بیٹھا ہے۔ مگر یہ بات تو ایک فریق کہہ رہا تھا، ہو سکتا ہے انتظامیہ کا اپنا الگ موقف ہو، اور ممکن ہے کہ افسران بالا صحیح صورتحال پر روشنی ڈال دیں۔ ویسے میں بڑے افسروں سے ذرا فاصلے پہ رہتا ہوں، مگر صحافتی انصاف کے خیال سے لاہور ریجن کے ایک افسر اعلیٰ کے کمرے میں میں بڑے ادب سے داخل ہوا۔ میں نے اپنا تعارف کرایا، میں BBC لندن سے آیا ہوں، میرا نام رضا علی عابدی ہے۔ خیال تھا کہ وہ کہیں گے بیٹھیے۔ انہوں نے کہا فرمائیے۔ میں نے اپنا تھیلا اپنی ٹانگوں کے بیچ میں رکھا اور خود ہی ایک کرسی پہ بیٹھ گیا۔ میں نے کہا میں ریلوے کے بارے میں ایک پروگرام تیار کر رہا ہوں اور جاننا چاہتا ہوں کہ لاہور ریجن کے جن ٹکٹ چیکرز کی ترقی ہوئی تھی ان کا کیا مسئلہ ہے۔ افسر اعلیٰ کے چہرے کا رنگ بدلا اور بولے، اگر لاہور ریجن کے ٹکٹ چیکرز کا کوئی مسئلہ ہے تو اس سے BBC کو کیا؟ میں نے کہا کہ ملازموں کا موقف سن لیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اب انتظامیہ کا موقف بھی سن لوں۔ بولے، جی میں کوئی انٹرویو نہیں دوں گا۔ میں نے کہا میں انٹرویو لینے نہیں آیا۔ کہنے لگے، آپ کو پتہ کیسے چلا کہ ٹکٹ چیکرز کا کوئی مسئلہ ہے؟ میں نے کہا کہ آج کے اخبار میں خبر چھپی ہے۔ کہنے لگے، وہ خبر میٹنگ کی ہے، مسئلے کی نہیں ہے، آپ مجھے گمراہ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا بالکل۔ پارٹ 11۔ آج میں آپ کو سمجھوتا ایکسپریس کی کہانی سناتا ہوں۔ یہ وہ ریل گاڑی ہے جو ایک سمجھوتے کے تحت ہندوستان اور پاکستان کے درمیان چلائی جاتی ہے۔ لاہور سے چل کر
पाकिस्तान के सरहदी मकाम वाहगा होती हुई ये ट्रेन हिंदुस्तान के सरहदी कस्बे अटारी तक जाती है। बहुत नेक मकसद के लिए चलाई जाने वाली ये ट्रेन अब बहुत बदनाम है। आज की कहानी उसी बदनामी की कहानी है। पाकिस्तान वाले कहते हैं कि इस ट्रेन के ज़रिए हिंदुस्तान से रॉ के जासूस आते हैं। हिंदुस्तान वाले कहते हैं कि इस गाड़ी पर सवार होकर पाकिस्तान से ISI के कमांडो आते हैं और हिंदुस्तान के इलाके में आकर चलती गाड़ी से कूद जाते हैं। मैंने इस गाड़ी से सफ़र किया है, मैं बताता हूँ इस गाड़ी से कौन आता है और कौन जाता है। हिंदुस्तान से वो बूढ़ी और दुखिया माएँ आती हैं जिन्होंने ये सोचकर कि बेटियों की ज़िंदगियाँ बन जाएंगी उन्हें पाकिस्तान में ब्याह दिया है। तरसती हुई आती हैं कि एक बार और बिटिया को देख लें, एक बार और शायद आखिरी बार नवासे नवासी को देख लें। और पाकिस्तान से ढलती ख़त्म होती नस्ल के वो बूढ़े जाते हैं कि सरहद पार जिनके नौ उम्री के दोस्त भी अब दुनिया से चलने को तैयार बैठे हैं, या जिनके बाप दादा की हड्डियां वहीं दफन हैं, और जो अमरोहे, बुलंदशहर, बाराबंकी, मुरादाबाद, रायबरेली, नगर या सादात के किसी टूटे फूटे कब्रिस्तान की किसी बोसीदा कब्र पर एक छोटा सा चिराग जलाने और 2 आंसू बहाने को जाते हैं और बस। इस ट्रेन पर न जासूस आते हैं न जासूस जाते हैं, इस पर दुखों के मारे हुए लोग आते हैं और मोहब्बत के सताए हुए लोग जाते हैं। इसका सबूत चाहिए हो तो मुसाफिरों की सफरी दस्तावेज़ें न देखिए, बल्कि रिश्वतखोर अफसरों की जेबें टटोलिए। मैंने लाहौर के स्टेशन पर इमिग्रेशन के एक सिपाही से कहा, आप लोग बहुत बुरे हैं, आप मजबूरों से रिश्वत लेते हैं और लाचारों से पैसा लेते हैं। सिपाही बोला, हमने क्या पैसा लेना, ऊपर वाले जो है ना, जो ये फूल लगाकर बैठे हैं, फिर उनसे ऊपर वाले बैठे हैं वो लोग, हमने क्या पैसा लेना है, छोड़ दे मुलाजिम ने क्या पैसा लेना है। आप शायद ये सुनकर हंसें कि मैंने आज तक किसी अफसर को रिश्वत लेते हुए नहीं देखा। किस्से तो बहुत सुने, इतने के किताब हो जाए, लेकिन अपनी आंखों से मंजर कभी नहीं देखा। समझौता एक्सप्रेस का चमत्कार देखिए कि उसने मुझे ये मंजर भी दिखा दिया। लाहौर स्टेशन के एक बैरूनी प्लेटफार्म पर हिंदुस्तान जाने वाली गाड़ी लग चुकी थी और प्लेटफार्म के साइबान के नीचे कस्टम और इमिग्रेशन की कार्रवाई हो रही थी। मैं उन लोगों की सफ़ में खड़ा था जिनके पास बरतानवी पासपोर्ट थे। मेरे बराबर उन लोगों की कतार थी जिनके पास हिंदुस्तानी पासपोर्ट थे। बीच में एक पुरानी ठुकी पिटी ज़ख्म खुदा मेज़ थी जिसकी दूसरी जानिब चुप साधे हुए कुछ इमिग्रेशन के सिपाही और सीना ताने हुए इमिग्रेशन का एक बावर्दी फूल वाला अफसर खड़ा था। कतार में कोई मुखबिर, एजेंट, कमांडो या जासूस नहीं, बल्कि बुर्का पोश बूढ़ी खवातीन खड़ी थीं। मलगजे लिबास, उड़ी हुई रंगत के पुराने बुर्के, मैले पैरों में रबड़ की सस्ती चप्पलें, आँखों में वीरानी, चेहरे की रंगत उड़ी हुई, बुढ़ापे के बाइस दांत छिदरे हो गए थे जिनमें उम्र भर के खाए हुए पानों का कत्था जमा हुआ था। वो हाथों में कुचले हुए मुड़े तोड़े पासपोर्ट लिए खड़ी थी और बिल्कुल यूँ लगता था कि फूल वाले अफसर के आगे अपना पासपोर्ट नहीं बढ़ा रही हैं बल्कि भिखारी का कासा फैला रही हैं। एक बूढ़ी माँ ने अफसर के आगे अपना पासपोर्ट रखा। अफसर क्या था, चर्बी का एक मुजस्समा था जिसका मोटापा पतलून के बखिए उधेड़ कर बाहर को फूटा पड़ रहा था। वो बोला, कितने पैसे लाई हो? ज़ईफ़ा ने बड़ी आजिज़ी से कहा, पासपोर्ट के अंदर हैं। अफसर ने पासपोर्ट को ऐसे छुआ जैसे किसी बच्चे के गंदे पोतड़े को छू रहा हो। मैंने भी गर्दन लंबी करके देखा। पासपोर्ट के अंदर 100 रुपए का एक नोट रखा था। फूलों वाले अफसर ने हकारत से कहा, ले जाओ इसे, तुम नहीं जा सकती। मैं जब वहाँ से आगे बढ़ा, कई बूढ़ी खवातीन रहम की इल्तिजा के अंदाज में अफसर को भैया भैया कह रही थीं और भैया की एक ही आवाज़ आ रही थी, तुम नहीं जा सकती, तुम नहीं जा सकती। आज मैं अपनी खुशनसीबी पर रश्क करता हूँ कि मुझे जाने की इजाज़त मिल गई। मैं गाड़ी में दाखिल हुआ तो एक ज़ईफ़ लेकिन तवाना, बुलंद लेकिन शफीक आवाज़ ने ललकारा, अस्सलाम अलैकुम। ये कराची के हकीम सादत अली थे।
انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا. میں نے پوچھا حکیم صاحب آپ ہندوستان کیوں جا رہے ہیں؟ ایسے گھومنے کے لیے، میں دوائیں دینے کے لیے، بھائیوں سے ملنے کے لیے، غریبوں سے ملنے کے لیے. صرف وہاں نظر کروں گا، لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں مجھے دیکھ کے. میں پرانے میری ملاقات کرتا ہوں، مزارت پر دعا کرتا ہوں، اور ان سے مجھے بڑا فیض ہوتا ہے، مجھے زیارت ہوتی ہے ان کی، اور میری اس کے لیے آتے ہیں. میں اللہ تیرا شکر کرتا ہوں رب العالمین. میں تو بہت گنہ گار ہوں، بہت سیاہ گار ہوں، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا کبھی بھی. میں نے کہا حکیم صاحب آپ ٹرین سے ہندوستان جاتے ہیں، میں نے تو سنا ہے کہ یہ سفر بہت سخت ہے. صاحب سفر تو بہت سخت ہے. جو پریشانی میں کرے وہ ہمیں محبت ہے، اخلاق ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے لیے جا رہے ہیں، بہن بھائیوں سے ملنے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، شکر رب العالمین کا. گاڑی ابھی لاہور پہ کھڑی تھی، اس کے چلنے کا کوئی وقت مقرر نہیں. مسافر آتے جا رہے تھے، ڈبے میں رونق بڑھتی جا رہی تھی. حکیم سعادت علی کی گفتگو اتنی دلچسپ تھی کہ ہر ایک سننے لگا. میں نے ان سے پوچھا کہ اب خیر سے کتنی عمر ہے آپ کی؟ میری اس وقت 80 برس کی عمر کچھ حکم ہونا آ رہی ہے. اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑی رحم ہے. میرا کوئی بیماری میرے اندر نہیں، خدا کی رحمت سے. 2 میں نے شادیاں کی، 18 بچے ہیں ماشاءاللہ، سب حیات ہیں، خدا کا کرم ہے. اور گھر میں ایک فوج ہوتی ہے. سارا مجمع ان کی تقریر توجہ سے سننے لگا. میں نے کہا کہ حکیم صاحب آپ کے اتنے بہت سے بچے تھے تو آپ کو تو بڑی پریشانی ہوتی ہوگی. خدا کی قسم اتنا پریشان تھا کہ ہمارے رشتے دار جو ہوتے تھے، میرے 13 جب بچے ہوئے تو بلاتے نہیں تھے، چھوڑ دیتے کہ اس کو نہیں بلاؤ، اتنے بچے کون کھلائے گا. میں صبر کرتا رہا. جو بڑا آدمی مجھے دعوت میں بلاتا میں بچوں کو لے آتا اپنے ساتھ، اور میں یہ دعا کرتا یا اللہ تو مجھے اتنا دے کہ میں بھی کھلاؤں. آج اللہ نے میری ایسی دعا قبولی کہ میں خود کھلاتا ہوں دوسروں کو. اور بچہ منع کرتا ابا تمہارے پاس حرام کا پیسہ آ گیا، تم کیوں کھلا رہے؟ میں نے کہا بیٹا تم نہیں جانتے جو میں نے دیکھا اپنا وقت، تم نہیں جانتے جو وقت میں نے دیکھا. میں تم کو گودوں میں لے جاتا تھا، ٹوکریوں میں لے جاتا تھا، سائیکل پہ بٹھا کے 2 بچوں کو اس ٹوکری میں ڈالتا تھا، 2 بچوں کو اس ٹوکری میں جاتا، سائیکل پہ اٹھاتا، 2 آگے بیٹھتے 2 پیچھے بیٹھتے، اور خوب پیٹ بھر کھاتے. کیونکہ ہمیں کہاں وہ نصیب ہوتا تھا. 55 روپے تنخواہ ہوتی ہے اس زمانے میں، 60 روپے تنخواہ ہوتی، کھانا تو پورا ہوتا نہ تھا. لیکن ہمیں کوئی رشتے دار جو اپنے ہمارے رشتے دار بہت بڑے بڑے نہیں بلاتے تھے، یا محلے والے بھی نہیں بلاتے تھے کہ یار اتنے بچے سب کھائیں گے. سب وقت یاد ہے بابا جی، سب وقت ہم کو. میں نے کہا کہ آپ کے اور بچوں کے مالی حالات اب اچھے ہیں تو آپ ہوائی جہاز سے ہندوستان کیوں نہیں جاتے؟ کہنے لگے کہ کچھ بھی ہو میں اپنے آپ کو غریب تصور کرتا ہوں، غریبوں ہی میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، انہی کے ساتھ سفر کرتا ہوں. میں نے کہا کہ اس ٹرین میں تو بہت پریشانی ہوتی ہوگی. بہت پریشانی ہوتی ہے، پریشانیوں میں جاتا ہوں، پریشانیوں میں جاتا ہوں، بہت پریشانی ہوتی ہے. آپ آگے چل کے دیکھیں کہ کتنی پریشانی ہوتی ہے. پیشاب کو پانی نہیں ہوتا، ٹٹیوں میں پانی نہیں ہوتا، پینے کا پانی نہیں ہوتا. ارے اس سے انگریز ہمارا اچھا تھا، جو پانی 2 پلانے والے ہوتے تھے، ہندو بھی ہوتے تھے، مسلمان بھی ہوتے تھے. ہمیں وہ یاد آتا، ہم نے وقت دیکھا بھائی میرے. میں نے حکیم صاحب سے پوچھا کہ وہ انگریزوں کا زمانہ یاد ہے آپ کو؟ خدا کی قسم یاد ہے ہم کو. ہم جانتے بھی نہیں تھے کہ سیٹ کیا ہوتی ہے، کہ بھرت کیا ہوتا ہے. یہی سیٹیں ہوتی ہیں، انگریز اسی پہ بٹھاتا تھا انگریز. اور کبھی یہ نہیں کہتا تھا، وہی سیٹ بائی سیٹ ہوتی تھی، اور بڑا آرام ہوتا تھا. بھنگی کھڑا ہوتا تھا باہر، اس کو بلا دیتے کہ صفائی کرو اس کی. یہاں بھنگی تو بھنگی اور لات مارتے ہیں، اس وقت کوئی کہنا سننے والا نہیں ہے. انگریزوں کا زمانہ، انگریز ہم کو یاد آتے ہیں. کہنے لگے کہ جہاں جاتا ہوں لوگوں کو دوائیں دیتا جاتا ہوں، لوگ بڑا خیال رکھتے ہیں. بولے اب اٹاری چل رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کتنے جو جتنے سیکھتے ہیں بڑے بڑے افسر ہیں، مجھے یہ ٹانگیں دبائیں گے، اٹھا پھریں گے. حکیم صاحب آ گیا، وید صاحب آ گیا، وید بولتے ہیں نا حکیم نے، وید صاحب آ گیا، وید صاحب آ گیا. میری بڑی عزت کرتے ہیں اور میں نے ان کو بڑی دوائیں دی، بڑا فیض ہوا. اللہ کا بڑا کرم ہے. اللہ سے یہ کہتا ہوں یا اللہ کی آیا آس لگا کہ یا اللہ اس کو فائدہ کر. میں نے حکیم سعادت علی صاحب سے پوچھا کہ اٹاری والوں کی طرح لاہور والے بھی آپ کا خیال رکھتے ہوں گے، انہیں بھی دوا دیتے ہیں آپ؟ میں دوا دیتا ہوا آ رہا ہوں. میں یہاں لاہور میں نے دوا دی، دوسری جگہ میں نے دوا دی، میری بڑی خاطر کرتے ہیں. یہاں بھی کسٹم میں نے دوا، ہر جگہ میں دوا دیتا ہوں. اب آپ جان کے دیکھ لینا، رادھا نام ہے، شنکر نام ہے. بڑا افسر جو میرے ٹٹے جھومتا، اللہ کا کرم ہے، اتنا خوشامد کرتا، اندر بلا لیتا ہے، لوگ تعجب کرتے ہیں. حکیم صاحب کی تقریر جاری تھی، ان کے گرد مجمع زیادہ ہوا تو میں اٹھ کر الگ جا بیٹھا. نوجوان انہیں نبض دکھانے لگے. وہ ناخن دبا دبا کر دیکھتے اور ہر ایک کو اس کی کمزوریوں، غلط کاریوں اور نامرادیوں کا کچا چٹھا سناتے اور پھر بھانت بھانت کی دوائیں بتاتے. ٹرین چل پڑی. لاہور کے نواحی علاقوں کی تازہ ہوا اندر آنے لگی. میرے قریب ایک خوش شکل ہونہار نوجوان بیٹھا تھا. اس کا نام احسان الحق باجوہ تھا. یوں تعلق تو تحصیل سمندری ضلع فیصل آباد سے ہے، لیکن وہ ہانگ کانگ میں رہتا ہے اور جب کبھی پاکستان آتا ہے ریل گاڑی کے ذریعے ہندوستان بھی جاتا ہے. میں نے پوچھا کہ یہ سلسلہ کب سے جاری ہے؟ جی میرے ساتھ 6-7 سال سے بائی ٹرین انڈیا آنا جانا ہے. حضور مخدوم علاؤالدین علی احمد صابر صاحب کلیہ شریف تحصیل روڑکی ڈسٹرکٹ ہریدوار میں ہے، وہاں بھی جاتا ہوں. اجمیر شریف سفر رہتا ہے، دہلی جاتا ہوں، تو بائی ٹرین ہی جاتا ہوں.
मैंने एहसान उल हक बाजवा से तस्दीक चाही और पूछा कि क्या ये सही है कि इस समझौता एक्सप्रेस पर सफ़र करने वालों को हुक्काम बहुत परेशान करते हैं? हुक्काम वाकई परेशान करते हैं। कभी कभार दोनों मुल्क के, पाकिस्तान और इंडिया, दोनों ही कस्टम में, इमिग्रेशन में बहुत टफ़ टाइम देते हैं। पासपोर्ट रख लेते हैं, पैसे वगैरह मांगते हैं, कम से कम 500 रुपया होता है। और मुझसे हर बार यही होता है कि फ़लाँ चीज़ ले आएँ, फ़लाँ ले आएँ, तो टाल देता हूँ वैसे, और कभी रिश्वत वगैरह देने की नहीं। मैंने कहा कि आपने खुद ऐसे मंजर देखे? मैंने कई मंजर देखे, लेकिन एक बहुत ही अफसोसनाक मंजर ये देखा। एक ईरानी जोड़ा आया था ईरान से, वो दिल्ली में अपने अजीज़ व क़रीब से मिलने के लिए जा रहे थे। तो ईरान से उन्होंने अपने दोस्तों अहबाब के लिए तोहफे वगैरह लाए, और उस पर इन्होंने इंडियन, पहले पाकिस्तानी कस्टम्स ने उस पर ड्यूटी लगा दी, जो कि असूलन नहीं लगनी चाहिए थी, क्योंकि वो कोयटा में ड्यूटी पे हो गई थी, लाहौर में ड्यूटी पे हुई, फिर अमृतसर अटारी पे भी ड्यूटी पे हुई। तो उन्होंने तकरीबन वो पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से 52,000 रुपये की थी, जिस पर उन्होंने 1.5 लाख रुपया ड्यूटी लगा दी। और वो औरत चिल्ला रही थी, उसका आदमी इतना कमज़ोर था कि वो बात भी नहीं कर सकता था और चलने फिरने के भी काबिल नहीं था। और फिर मुझे मजबूरन दिल्ली तक जाना पड़ा, और मैंने उसको सहारा दिया और उनकी ड्यूटी भी माफ़ करवाई। उनके पास जो कुछ था वो उन्होंने फिर उनको दे दिया, और मैंने अपनी जेब से उनको 150 रुपये उनकी मदद की कि वो दिल्ली से अपने घर रक्षा तक चले जाएं। हम और एहसान बातें करते जा रहे थे। हमारी गाड़ी पाकिस्तान के आखिरी स्टेशन वाघा पर ठहरी और फिर हिंदुस्तान के इलाके में दाखिल होने लगी। यहाँ सरहद पर खारदार तारों की बेहद ऊंची और मजबूत फसील जैसी बाड़ खड़ी थी, जिसके ऊपर तेज़ रोशनियाँ लगी थीं। सुना है कि रात को जब वो जलती हैं तो हवाई जहाज़ों से सरहद की लकीर चमकती हुई दिखाई देती है। जहाँ गाड़ी ने सरहद पार की, वहाँ हिंदुस्तान के घुड़सवार फौजी तैयार खड़े थे। वो ट्रेन के साथ साथ अपने घोड़े दौड़ाने लगे। लोग बताते हैं कि हिंदुस्तान वालों का ख्याल है कि इस जगह ट्रेन से जासूस और तखरीबकार कूद जाते हैं। उनकी रोकथाम के लिए गाड़ी के साथ घोड़े दौड़ाए जाते हैं। ट्रेन चल रही थी, घोड़े दौड़ रहे थे। ये सब हिंदुस्तानी इलाका, हाँ। ये दूसरा घोड़ा है, तीसरा है ये। अच्छा, एक उधर है, वो गया। 3 घोड़े दौड़ रहे हैं ट्रेन के साथ। ज़रा सी देर में अटारी का हिंदुस्तानी स्टेशन आ गया। मुसाफिर उतरने लगे। पूरे प्लेटफार्म पर सारी हिदायतें अंग्रेज़ी के अलावा उर्दू में भी लिखी हुई थीं। किसी बदखत पेंटर ने लिखी थीं और उर्दू पर गुरमुखी का गुमान होता था। जैसी भी थीं, तहरीरें उर्दू ही में थीं। यहाँ आकर महसूस हुआ कि वक्त ठहर गया है और फिल्म स्लो मोशन में चलने लगी है। किसी को जल्दी ना थी। कोई नहीं चाहता था कि काम तेज़ी से निपटा दे। खुदा खुदा करके पासपोर्टों की जांच पड़ताल शुरू हुई। एक उम्र गुजर गई तो सामान की तलाशी का मरहला आया। जो भी अफसर और एहलकार था, वो पासपोर्ट लेकर किसी और के पास ज़रूर भेजता था, तफसील ज़रूर दर्ज करता था, उसे उलट पुलट के ज़रूर देखता था। सैकड़ों मुसाफिर पूरे प्लेटफार्म पर फैले हुए और परेशान परेशान से नज़र आ रहे थे। मुझे ख्याल हुआ कि और कुछ हो या ना हो, हकीम सादत अली किसी आला अफसर के दफ्तर में बैठे गर्म गर्म चाय पी रहे होंगे। हुक्काम उन्हें वैद साहब कह रहे होंगे और उनके पांव दबा रहे होंगे। देखा कि हकीम साहब बेसरो सामानी के आलम में प्लेटफार्म के दरमियान खड़े हुए हैं। हारा हुआ फौजी जैसे हथियार डालता है, उन्होंने दोनों बाजू डाल दिए हैं और दूर दूर तक कोई उनका पुलसाने हाल नहीं। मैंने पूछा, क्या हुआ हकीम साहब, वो आपकी आवभगत करने वाले अफसर कहाँ हैं? बोले, आज उनमें से किसी की ड्यूटी नहीं है। जल्दी से ये बात कही और तेज़ी से मुसाफिरों के मजमे में गुम हो गए। अब मंजर बदला और देखा कि हांगकांग का फैसलाबादी जवान एहसान उल हक बाजवा चला आ रहा है। उसके औसान खता हैं और चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही हैं। मैंने कहा, क्या हुआ एहसान? कहने लगा, उन्होंने मुझे पकड़ लिया है। कहते हैं कि वीज़ा के मुताबिक तुम्हें दिल्ली के रास्ते आना चाहिए था, लेकिन तुम अटारी के रास्ते आ रहे हो।
मैंने कहा फिर? कहने लगा फिर क्या, 5,000 रुपये मांग रहे हैं। उसके लहजे में बड़ी बेबसी थी। समझौता एक्सप्रेस अब वापस लाहौर जाने के लिए तैयार थी। उसमें नए मुसाफिर बैठ चुके थे। मैंने सोचा कि लाहौर में फूलों वाला अफसर इनके इंतज़ार में बैठा छुरा तेज कर रहा होगा। इनकी जेब का वज़न कुछ अटारी वालों ने हल्का किया, बाकी कसर लाहौर वाले पूरी करेंगे। ट्रेन रवानगी के लिए सीटी बजा रही थी। उस पर लिखा था समझौता एक्सप्रेस, लेकिन मुझे दिखाई दिया कमझौता एक्सप्रेस। पार्ट 12। ये अमृतसर है। लाहौर से चलकर अटारी से गुजरकर मैं अमृतसर पहुंचा तो खुद को बिल्कुल अजनबी देश में पाया। ना कोई सूरत आशना, ना नाम आशना और ना कोई आवाज़ आशना। अमृतसर स्टेशन पहुंचते ही मुझे अगले रोज़ आगे जाने की फिक्र थी। सुना यह था कि हिंदुस्तान की रेलगाड़ियों पर पहले से नशिस्तें महफूज कराना ज़रूरी है और लोग ये काम हफ्तों पहले करा लेते हैं। मुझे तो अगले ही रोज़ जाना था। डर था कि शायद नशिस्त ना मिले। वो तो बाद में मिलती। मुझे तो स्टेशन की इमारत में वो दफ्तर और वो खिड़की ही नहीं मिली जिसके रास्ते से टिकट खरीदा जाए। स्टेशन के सामने का सारा इलाका देख डाला, रिजर्वेशन ऑफिस कहीं न था। मालूमात की खिड़की पर गया, वो खाली पड़ी थी। पुलिस ने एक बड़ा सा काउंटर बना रखा था जिस पर लिखा था कि हम आपकी मदद के लिए हाजिर हैं। वो भी खाली पड़ा था और कुर्सियों और बेंचों से महरूम स्टेशन में थके हारे मुसाफिर उस काउंटर पर चढ़े बैठे थे। बड़ी मुश्किल से मालूम हुआ कि रिजर्वेशन ऑफिस स्टेशन के पिछवाड़े है। अपना वजनी थैला उठाए उठाए मैं पुल पर चढ़ा और पार उतरा, तब वो ऑफिस मिला। बहुत सी खिड़कियों पर बहुत सी कतारें बनी हुई थीं और बेशुमार लोग रिजर्वेशन की दरख्वास्त के फॉर्म भर रहे थे और अपनी नशिस्तें महफूज करा रहे थे। मैं ठहरा तहकीक का आदमी, बड़ी तहकीक की, बड़े बोर्ड पढ़े। कुछ समझ में न आया कि किस ट्रेन पर बैठकर किधर जाना है। मकामी लोग धड़ाधड़ फॉर्म भर रहे थे। 3074 में 2 सीटें दे दो, 3006 में 1 बर्थ चाहिए, 5210 में 4 सीटें मिल जाएंगी क्या, पंजाब मेल में सीटें हैं या नहीं, हावड़ा मेल फुल है तो चलो हावड़ा एक्सप्रेस में 4 सीटें दे दो। कुछ इस तरह की गुफ्तगू हो रही थी। मैं अगर छोटा सा बच्चा होता तो फूट फूट के रोने लगता। बड़ी हिम्मत करके मैं इंक्वायरी की खिड़की पर गया जो हिंदुस्तान में पूछताछ कहलाती है। मैंने कहा कि सीधा विलायत से आ रहा हूँ और रामपुर जाना चाहता हूँ। मुझे इन रेलगाड़ियों के बारे में ज़रा सा भी इल्म नहीं, खुदा के लिए मेरी मदद कीजिए। वो जो खिड़की के अंदर बैठा था वो तो फरिश्ता निकला। उसने कहा कि हावड़ा मेल से चले जाओ। हिंदुस्तान में चले जाइए कहने का रिवाज नहीं रहा। हावड़ा मेल से चले जाओ। फॉर्म पर हावड़ा मेल ना लिखना बल्कि 3006 लिखना और उस लंबी लाइन में ना लगना, बल्कि ये जो औरतों और बूढ़ों की खिड़की है इसमें फॉर्म दे दो। मैंने फॉर्म भरा और औरतों और बूढ़ों की खिड़की पर जा पहुंचा। वहाँ दूसरा फरिश्ता बैठा था। उसने मेरी जिन्स या उम्र की तहकीक किए बगैर मेरा फॉर्म ले लिया। अब उसने कंप्यूटर पर उंगलियां दौड़ाईं। स्क्रीन पर बहुत कुछ लिखा हुआ आ गया। कहने लगा वेट लिस्ट है लेकिन नंबर 1 है, सीट मिल जाएगी। वेट लिस्ट का मतलब बज़ाहिर तो यह है कि सीट मिलना यकीनी नहीं। अभी मेरे औसान ख़ता हुआ ही चाहते थे कि कतार में मेरे पीछे खड़ी हुई लड़कियों ने कहा हाँ हाँ सीट मिल जाएगी, नो प्रॉब्लम। बुकिंग क्लर्क ने कहा कल पहले यहाँ आ जाना, मैं ओके कर दूंगा। मैंने टिकट ले लिया, उसे मुट्ठी में भींच कर सीने से लगा लिया और मेले में खो जाने वाले लड़के की तरह दोबारा पुल के ऊपर चढ़ने लगा। स्टेशन से बाहर निकला तो गज़ब की भूख लगी हुई थी। दुआ मांग रहा था कि करीब कोई पंजाबी ढाबा मिल जाए। सामने देखा तो एक छोड़ 2 ढाबे नजर आए, जगजीत का ढाबा और मोहन का ढाबा। मैंने एक दुकानदार से मशवरा तलब किया कि क्या करूं। उसने कहा जगजीत के यहाँ चले जाओ। 8 रुपए में दुनिया की सबसे लजीज सब्जी और दाल और सुर्ख रोटी खाकर मैं अपने होटल में पहुंचा और सो गया।
और सारी रात ख्वाब में देखा कि लाहौर और अटारी के स्टेशनों के मोटे मोटे अफसर जिनकी वर्दी में फूल लगे हुए हैं मुझसे रिश्वत मांग रहे हैं और मुझे गिरफ्तार करने की धमकी दे रहे हैं। मुझे क्या पता था कि अगली शाम ये ख्वाब सच साबित होते होते रह जाएगा। गाड़ी की रवानगी अगली शाम 6:15 बजे थी। मैं 4:15 बजे ही स्टेशन पहुंच गया ताकि यकीनी तौर पर मालूम हो जाए कि मेरी सीट महफूज है। बुकिंग क्लर्क मुझे पहचान गया और उसने कंप्यूटर में देखकर लम्हा भर में मुझे मेरी नशिस्त का नंबर बता दिया। अभी मैं हिंदुस्तानी रेलवे के कंप्यूटर की मुस्तादी पर दाद दे ही रहा था कि एक साहब ने अपना तारुफ कराया। मेरा नाम NK अरोड़ा है और मैं बुकिंग एजेंट हूँ। कमीशन लेकर हर किस्म की नशिस्त रिज़र्व करा सकता हूँ। मैंने कहा कि अरोड़ा साहब, पहले तो ये बताइए कि कल जब मैं यहाँ ख्वार हो रहा था तो आप कहाँ थे? उसके बाद ये बताइए कि हिंदुस्तानी रेलवे में ये कंप्यूटर कब से काम कर रहा है? कंप्यूटर यहाँ 2 साल हो गए करीब। 2 साल हो गए। कैसा चल रहा है, आपका क्या ख्याल? यहाँ तो बहुत बढ़िया चल रहा है, अमृतसर में बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ स्टाफ बहुत अच्छा है, चीफ साहब बहुत अच्छे हैं, ATS साहब बहुत अच्छे कोऑपरेटिव हैं, हर आदमी को कोऑपरेट करते हैं। कंप्यूटर में कभी कभी ब्रेक डाउन हो जाता है, वो प्रॉब्लम यहाँ भी है? ऑल इंडिया में प्रॉब्लम है। मैंने कहा कि अरोड़ा साहब, प्लेटफार्मों पर इतने ज़्यादा मुसाफिर जमा हैं कि 2-4 और आ गए तो मुसाफिर चलती ट्रेनों के आगे टपाटप गिरने लगेंगे। इतने मुसाफिर आपकी रेलगाड़ियों में कहाँ समाएंगे? कहने लगे, अक्सर देखिए जी, पब्लिक हमारे हिंदुस्तान में 1 मिनट में 400 बच्चा पैदा हो रहा है और 400 ही बड़ा हो रहा है, तो इस हिसाब से गाड़ियों का हालत बुरी है। इस कंडीशन में पब्लिक के लिए बहुत बुरा हाल है, गाड़ियाँ बढ़नी चाहिए। खैर, अब मेरे रात के ख्वाब का किस्सा सुनिए, जो अगर सच्चा होता तो मैं अमृतसर की किसी हवालात में पड़ा होता। मैं हावड़ा मेल पर सवार होने प्लेटफार्म पर पहुंचा तो 2 बातें पता चली। एक तो ये कि गाड़ी 3 घंटे लेट है, दूसरा ये कि प्लेटफार्म का ये हाल है कि आदमी पर आदमी सवार है। मसलन ये कि प्लेटफार्म पर 2000 मुसाफिर आ गए हैं, जबकि उनके बैठने के लिए सिर्फ 10-12 बेंचें डाली गई हैं। अब मसला ये था कि ये 3 घंटे कहाँ बैठ के गुजारे जाएं। मुझे पुलिस का वो बड़ा सा काउंटर याद आया जिस पर लिखा था कि हम आपकी मदद के लिए हाजिर हैं। मुश्किल ये थी कि वो मदद करने वाला अमला खुद गैर हाजिर था और थके हुए मुसाफिर उस काउंटर को बेंच के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। मैंने सोचा कि चलकर उसी को देखा जाए, शायद कोई कोना खाली मिल जाए। अब जो मैं पहुंचा तो क्या देखता हूं कि एक कोना क्या, पूरा काउंटर खाली पड़ा है। कुछ सहमे हुए मुसाफिर एक तरफ और कुछ सिमटे हुए मुसाफिर दूसरी तरफ खड़े हैं, लेकिन काउंटर पर अपना वजूद टिकाने से हर एक गुरेज कर रहा है। मैंने सोचा कि मौका अच्छा है, लपक कर गया, अपना थैला फर्श पर रखा और ख़ुद काउंटर पर चढ़ के बैठ गया। मजमे ने मुझे यूं देखा जैसे वो मुझ पर तरस खा रहा हो और उसे मुझ पर रहम आ रहा हो। मैंने देखा कि उसी मजमे के अंदर से एक मोटा सा पुलिस अफसर निकला। उसके बाजू पर लगे हुए फूल तो मैं शुमार न कर सका, क्योंकि मेरी तवज्जो उसके मोटे से पेट में धसी हुई भैंस के चमड़े की पेटी पे लगी हुई थी, और रह गया उसका हुलिया तो क्या बयान करूं। हिंदुस्तानी फिल्मों में आपने वो पुलिस अफसर ज़रूर देखा होगा जो शहर के सबसे बड़े स्मगलर, मनशियात फरोश या गरीबों का खून चूसने वाले सनतकार का ख़ास आदमी होता है। बस ये अफसर वैसा ही था। मेरे करीब आकर उसी के मुकालमों के अंदाज में बोला, काउंटर पर क्यों बैठे हो? मैंने झट जवाब दिया, इसलिए कि काउंटर पर आपके जिस अमले को बैठना चाहिए था वो गायब है, काउंटर खाली पड़ा है, इसलिए थके हुए मुसाफिर इस पे बैठ रहे हैं। ऐसे मौके पर वो फिल्म वाला अफसर जिस तरह कहता क्या, इस पुलिस अफसर ने भी बिल्कुल उसी तरह कहा क्या, और अपनी पेटी से हथकड़ी खोलने लगा। वैसे पंजाब के इस इलाके में इल्हाम के किस्से बहुत सुने हैं। मेरे कान में भी किसी ने कहा, जाबिर हाकिम के आगे कलमा हक कहने वाले, थैला उठा और भाग। अब हावड़ा मेल का इंतज़ार था। ये गाड़ी कलकत्ते से आती है, फिर इसे धोया जाता है, इसकी सफाई होती है और 3 घंटे बाद ये वापस जाती है। गाड़ी 3 घंटे लेट आई और इससे पहले कि ये सफाई के लिए यार्ड में जाती, सैकड़ों मुसाफिरों ने या हू का नारा लगाया और उसके 2 जनरल डिब्बों में उसी वक्त खचाखच भर गए। हर गाड़ी में ये 2 डिब्बे ऐसे होते हैं जिनमें नशिस्तें पहले से महफूज कराना ज़रूरी नहीं।
फिर ये सारे मुसाफिर गाड़ी समेत यार्ड में गए और जब 3 घंटे ताखीर से ट्रेन वापस आके प्लेटफॉर्म पे लगी तो ये तसव्वुर करना मुश्किल है कि इन 2 डिब्बों में ठुसे हुए मुसाफिर सांस कैसे ले रहे होंगे। मुझे एयर कंडीशन स्लीपर में अपनी नशिस्त बआसानी मिल गई। कल तक जिस गाड़ी में मेरी नशिस्त वेट लिस्ट पर थी, आज उसकी ज़्यादातर बर्थें खाली पड़ी थीं। मैं 4 बर्थों के अपने खाने में अकेला था। ट्रेन चलने में अभी कुछ देर थी। अपना सामान करीने से चुनकर मैं अपने डिब्बे का जायज़ा लेने लगा। देखा कि एक बर्थ पर एक बुज़ुर्ग अपना बिस्तर जमा रहे हैं। देखने से यूँ लगा कि अगर ये कुरैशी साहब नहीं तो कोई सिद्दीकी साहब या फारूकी साहब ज़रूर होंगे। माफ़ कीजिए, आपका नाम क्या है? बोले, आरबी सक्सेना। हमने हाथ मिलाए, दिल खुद ही मिल गए। सक्सेना साहब बहुत खुश अखलाक, मिलनसार और शफीक निकले। नहायत उम्दा उर्दू में नहायत शगुफ्ता और दिलचस्प बातें कर रहे थे। पता चला कि अब 72 साल के हैं और 40 साल तक रेलवे के मुलाजिम रह चुके हैं। कैसे भर्ती हुए और तरक्की करते करते कहाँ तक पहुँचे, लीजिए सक्सेना साहब की ज़बानी सुनिए। हमारी ट्रेन चली जा रही थी और बातें भी जारी थीं। मैंने पूछा कि सक्सेना साहब, आपने कब ये रेलवे की मुलाजमत इख्तियार की थी? 11 दिसंबर सन 46। और शुरू में क्या किस तरह की मुलाजमत थी? 18 रुपए का नौकर हुआ था रेलवे में। नहीं, बिल्कुल 18 रुपए का नौकर हुआ था भाई। मैंने कहा कि रेलवे की मुलाजमत क्या किसी ख़ास वजह से इख्तियार करनी पड़ी? क्योंकि मेरे फादर की डेथ हो चुकी थी और मेरी मदर थी, 2 भैये थे, 2 बहनें शादी को थी। मैं पढ़ा भी नहीं, हालांकि पढ़ रहा था। मुझे मजबूरन 8th क्लास से पढ़ना छोड़ना पड़ा। तो एक मेरे मित्र मिल गए, दोस्त, उन्होंने मुझसे कहा, अरे यार तू परेशान हो रहा है, ये वो फलान ढमका, तू चल मैं रेलवे में करा दूँ। तो उन्होंने मुझे रेलवे में क्लीनर करा दिया। मैंने कहा कि सक्सेना साहब, क्या ये सही है कि उस वक्त रेलवे के मुलाजिम खुसूसन इंजन के ड्राइवर ज़्यादातर अनपढ़ होते थे? उस ज़माने में रेल में पढ़ा लिखा आदमी, ख़ास तौर से ड्राइवर तबके में, कोई नहीं जाना चाहता है। और ख़ास तौर से मोहम्मदन लोग जाया करते थे। मैंने सुना है बिल्कुल अनपढ़ होते थे। हाँ, अनपढ़ होते थे, ज़्यादातर अनपढ़ होते। ये बिल्कुल सही है आपकी। फिर मैंने आरबी सक्सेना साहब से पूछा कि आपने क्लीनर की हैसियत से मुलाजमत शुरू की, ये सिलसिला कितने अरसे चला? कोई 1.5 वर्ष चला। फिर सेकंड फायरमैन हुए, फिर गाड़ियाँ चलाई अंग्रेज़ों। उस ज़माने में अंग्रेज़ भी थे, वो भी फिर हुआ, अंग्रेज़ भी जाने लगे, फिर हिंदुस्तानी आ गए, हम शंटर हो गए, फिर ड्राइवर हो गए। मैंने पूछा कि उस वक्त रेलवे के ड्राइवर की इज्जत थी या नहीं? आम लोग और खुसूसन रेलवे के हुक्काम ड्राइवर को इज्जत की निगाह से देखते थे? उस ज़माने में, हमारे ज़माने में क्या होता था, कोई गड़बड़ी होगी चलते में, गाड़ी चल रही है, कोई गड़बड़ कुछ भी होगी, तो उसमें ये होता था कि उन्हें अफसर ने बुलाया, गार्ड को बुलाया, टीटी को बुलाया, जो कोई थे सबको बुला लिया, ट्रैफिक स्टाफ को बुलाया उन्हें, और उसके बाद में उन्हें ये मामला तय नहीं हो रहा, सारे बेईमान है, ड्राइवर को लाओ। ये अंग्रेजों की परंपरा थी कि ड्राइवर तो सो नहीं सकता, सोने का सवाल ही नहीं पैदा होता, ये तो अनशन बोल रहे हैं, ड्राइवर को लाओ। भाई वो फलाना स्टेशन में क्या हुआ है, उन्हें साहब हमें ये ऐसे बातचीत, कहानी खत्म। इतना बिलीव करते, जो ड्राइवर ने कह दिया वो सही है। नहीं, मैं सही कर रहा हूँ। मैंने पूछा कि करीब 40 साल की रेलवे की मुलाजमत के बाद मेरा ख्याल है कि आप अब तक थकन महसूस करते होंगे? थका तो मैं नहीं था, और थकान तो मेरी यूँ दूर हो गई कि एक मजदूर 18 रुपये का नौकर, आज मैं 3,500 रुपये कमा रहा हूँ, थकावट का है। अब मैंने आरबी सक्सेना साहब से पूछा कि रेलवे इंजन के ड्राइवर की घरेलू ज़िंदगी कैसी होती है? आप लंबे लंबे सफ़र पर जाते होंगे, बीवी बच्चे तो बहुत याद आते होंगे। जब इंजन पर चढ़ गए और रेल चलाई, किसका बच्चा किसकी बहू, ये कुछ नहीं है।
जब लौट के चले नियर स्टेशन जहाँ आप रामपुर जा रहे हैं तो याद आता था यार हमारा गुड्डा तो ऐसा है, गुड़िया यूँ है, ये करेंगे फलाना करेंगे और तू क्या लेके, तब दिमाग घूमता था। यानी 17 किलोमीटर में ये दिमाग घूमता था। मैंने कहा कि मैंने तो ये सुना है कि बेचारे ड्राइवरों को सोते से जगा लिया जाता है कि तुम्हें ट्रेन लेके जाना है। बीवी बच्चे तो उससे खुश नहीं होते होंगे। या फर्ज कीजिए कि आपको बुखार आ गया। बुखार आ रहा है, बुखार आ गया, घरवाली मना कर रही है, क्या करो मरोगे क्या, ये चुप रहे, रोटी कौन खिलाए, अरे भाई जाएंगे 4 मिलेंगे ये वो। वाकई बुखार आ रहा है, मैं झूठ नहीं बोले। जब चढ़ गए तुमसे मिले, आपसे मिले, आपसे मिले, उनसे मिले, हाजी सब जनन वाले सब बुखार उखार डाला। लेकिन बीवियों को तो बड़ी शिकायत होती होगी। नहीं कभी नहीं, कभी मेरी वाइफ मेरे साथ 50 साल रही, अभी मरी है, लेकिन कभी उन्होंने उनको कोई शिकायत